अस्सलामुअलैकुम। आज यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले यूनिट 7 के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे और उसके बाद इस यूनिट की वोकैबुलरी देखेंगे, तो फिर इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो वहाँ पर रीडिंग नंबर 17, फर्स्ट रीडिंग में वेयर इज़ द पोएट, सो ही इज़ इन द वुड्स, डिस्क्राइब द रोड ही इज़ वॉकिंग ऑन, इट वॉज शेप्ड लाइक अ वाई, व्हाट डिसीजन डज ही हैव टू मेक, which branch of the Y to take, what is the condition of each road, both were pretty, one was grassier and wasn't used, but almost the same number of people have taken each road in the past, which road does he take and why? Not the first one, he looks it in stanza number 1, the other one, not the one that goes into the bushes. तो सेकंड रीडिंग के क्वेश्चंस है, रीड द पोएम अगेन एंड फाइंड द एविडेंस इन द पोएम ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज. द पोएट वांट्स टू टेक बोथ रोड्स. सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर. इट्स नॉट इजी फॉर द पोएट टू डिसाइड. लॉन्ग आई स्टूड. तो ये एविडेंस है. द पोएट इज द फर्स्ट पर्सन टू कम दिस वे ऑन दिस डे एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले एंड लीव्स नो स्टेप हेड trodden black. The poet plans to come this way again. तो उन्होंने कहा था, oh I kept the first for another day. तो ये एविडेंस है इन क्वेश्चंस की. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस आंसर्स to these questions with your classmates. What's the poet saying about life in the last 3 lines of stanza number 3? We sometimes say we will do things, but life surprises us and changes our plans. One decision can change your life. Question number 2. Who do you think the poet might be telling this incident to in the future? Why might he tell it with a sigh? Possibly a grand chill. He might sigh because he realizes life didn't permit him to take the other way. Okay, last question है, what does the poet mean when he writes, I took the less traveled by and that has made all the difference. Taking the road that fewer people take makes all the difference, good or bad. Maybe it is better to go the way fewer people go. Maybe it is better to stick with the crowd. Life ambiguous like these lines. तो यूनिट नंबर 8 की वोकैबुलरी है, रूममेट, कमरे का साथी, a person who shares a room with you. Get used to की आदत डालना, to adopt the habit of, rebuilding तामीर, no, to build again, you are kidding, आप मजाक कर रहे हैं, you are joking, catch up पकड़ना, draw near, to come close to, emphasize जोर देना, stress, highlight, crazy पागल, mad or silly, gradually आहिस्ता आहिस्ता, slowly, steadily, regularly, peace अमन, calm, silence, communication मौसिलात, message or statement, old stop, पुराना stop, old things, irritate, चिड़चिड़ाना, तो हम कह सकते हैं annoy or bother, blow up, उड़ा देना, fight, hug, गले लगाना, hold close, jabber, chatter, buddy, dost, playmate, superior, आला, better or quickly, relationship, रिश्ता, association. Unit number 8. News from Winfield. Winfield से खबर. This young started working at Winfield Airlines 3 weeks ago. Liz Young जो है, उन्होंने काम स्टार्ट किया था 3 हफ्ते पहले वर्ल्ड एयरलाइंस के साथ. She is staying with her friend. वो अपनी फ्रेंड के साथ रह रही है, सीयू के साथ. Until she can find a place of her own. तब तक वो यहाँ रहेगी जब तक वो अपना जगह नहीं ढूंढती. She's been so busy. वो बहुत ज़्यादा बिजी रह चुकी है with work, काम के साथ, and looking for an apartment और apartment को देखने में, that she hasn't called her folks in over a week. अभी तक वो अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं कर चुके हैं. एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है. तो एलेनर ने कहा हेलो. लिज ने कहा हाय मॉम. एलेनर, लिज, where have you been?
लिज आप कहाँ रह चुकी है? आई हैव बिन ट्राइंग टू कॉल यू, मैं कोशिश कर रही थी आपको कॉल करने के लिए, बट यू आर नेवर होम, लेकिन आप कभी भी घर पर नहीं थी। लिज ओ मॉम आई हैव बिन सो बिजी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट आई एम फाइन, लेकिन मैं ठीक हूँ। गेस वट, गेस करो क्या हुआ है? इन्होंने कहा यू हैव फाइंड एन अपार्टमेंट, आपको यू हैव फाउंड एन अपार्टमेंट, आपको अपार्टमेंट मिल गया है। लिज ने कहा राइट, वेल नॉट एग्जैक्टली, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। आई हैव फाउंड अ रूममेट, मुझे रूममेट मिल गया है। अ फ्रेंड ऑफ सीयूज, जो कि सीयू का एक दोस्त है। न्यूयॉर्क इज सच एन एक्सपेंसिव सिटी, न्यूयॉर्क जो है ये एक्सपेंसिव शहर है, दैट आई जस्ट कैन अफोर्ड टू लिव अलोन, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती अकेले यहाँ रहना। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड एन अपार्टमेंट, अब जो हम कर रही है वो अपार्टमेंट ढूंढ रही है। एलनर ने कहा लिज दैट्स द बेस्ट न्यूज़ आई हैव हर्ड इन अ लॉन्ग टाइम। लिज ये तो सबसे अच्छा न्यूज़ है जो मुझे मैंने सुना है बहुत टाइम बाद। योर डैड इज़ गोइंग टू बी रिलीव टू, आपके डैड को भी आराम मिल जाएगा। हु इज़ योर न्यू रूममेट, आपका न्यू रूममेट कौन है? व्हाट्स शी लाइक, वो कैसी है? लिज ने कहा हर नेम इज़ निल्डा रोजेडो, उसका नाम निल्डा रोजेडो है। शी वर्क्स एट मैसीज, वो मैसीज में काम करती है। शी इज़ रियली नाइस, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट अलॉन्ग फाइन, मेरे ख्याल से हम एक साथ ठीक रहेंगे। इन्होंने कहा एंड हाउ इज़ द जॉब, और जॉब कैसा है? हाउ डू यू लाइक न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आपको पसंद आया? लिज ने कहा द जॉब्स फाइन, जॉब ठीक है, एंड आई एम गेटिंग यूज्ड टू न्यूयॉर्क, और मैं न्यूयॉर्क की आदी हो रही हूँ, बट इट्स रियली नॉइसी कंपेयर टू एनफील्ड, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है एज़ कम्पेयर टू एनफील्ड। हाउस एवरीबडी एट होम, घर पर लोग कैसे हैं? इन्होंने कहा वी आर फाइन हनी, हनी हम ठीक है। एवरीबडी इज़ बिजी, हर कोई बिजी है एज़ यूजुअल, आम तौर पर यानी आम रूटीन्स की तरह। द गाइज आर रिबिल्डिंग द इंजन ऑफ द ओल्ड कार, गाइज जो है वो ओल्ड कार के इंजन को रिबिल्डिंग में बिजी है, यानी वो ओल्ड कार के इंजन को मुरम्मत कर रहे हैं। इट्स बीन अ बिग जॉब, ये बहुत ज़्यादा बड़ा जॉब बन गया है, बड़ा काम बन गया है उनके लिए। दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, उन्होंने इस पर काम शुरू किया था 2 वीक्स अगो, 2 हफ्ते पहले। एंड दे स्टिल हैवंट फिनिश्ड, और अभी तक वो ये काम नहीं फिनिश कर चुके हैं, नहीं ख़त्म कर चुके हैं। इसने कहा व्हाट्स द न्यूज़ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वेनफील्ड, बाकी वेनफील्ड से क्या खबर है? फिर एलनर ने कहा यू वोंट बिलीव इट, आप ये यकीन नहीं करेंगी, बट द लॉगन्स माइट बी मूविंग टू टेक्सास, लेकिन शायद नावज जो है वो टेक्सास शिफ्ट हो जाए, वो टेक्सास चले जाए। लिज ने कहा नो यू आर किडिंग, नहीं आप मजाक कर रही है। टेक्सास, वाई टेक्सास, टेक्सास जा रही है, क्यों टेक्सास जा रही है? इन्होंने कहा टॉम हैज़ अ फ्रेंड इन डैलस, टॉम का डैलस में फ्रेंड है, हु ऑफर्ड हिम अ पार्टनरशिप इन हिज ट्रैवल एजेंसी देयर, जिन्होंने उसको पार्टनरशिप ऑफर किया है एक ट्रैवल एजेंसी में वहाँ पर। लिज ने कहा वाओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, वाओ क्या मौका है। व्हाट डू द रेस्ट ऑफ देम थिंक अबाउट द मूव, बाकी घर वाले मूव के हवाले से क्या सोच रही है? ने कहा बॉब इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट गोइंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, बाब जो था वो ऑलरेडी इसके हवाले से बात कर रहा था कि मैं टेक्सास यूनिवर्सिटी जाऊंगा। बट लिज़ा इज़ हैविंग ट्रबल गेटिंग यूज्ड टू द आइडिया, लेकिन लिज़ा जो है उसको मसला है इस आइडिया को अडॉप्ट करने में। सैम इज़ नॉट श्योर ही वांट्स टू लीव वेनफील्ड, सैम भी श्योर नहीं है कि वो वेनफील्ड छोड़ना चाह रहा है। लिज़ ने कहा आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मैं समझ सकती हूँ। एनी न्यूज़ फ्राम जीनो एंड क्रिस्टीना, क्रिस्टीना और जीनो से कोई खबर? एलनर ने कहा आई सा क्रिस्टीना द अदर डे, मैंने उसी दिन यानी 2 दिन पहले क्रिस्टीना को देखा था। शी डिडंट से मच, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बट शी इज़ अ लिटिल वरीड अबाउट जीनो, लेकिन वो जीनो के हवाले से कुछ फिक्रमंद है। आई गेस ही हैज़ बिन हैविंग प्रॉब्लम्स विद हिज बॉस एट द रोमा, मेरे ख्याल से जीनो जो है उसके कोई मसले चल रहे हैं अपने बॉस के साथ रोमा रेस्टोरेंट में। इसने कहा दैट्स इनक्रेडिबल, ये तो नाकाबिल यकीन है। जीनो इज़ नॉट द टाइप टू हैव प्रॉब्लम्स विद एनीवन, जीनो तो इस तरह का बंदा नहीं है कि उसका किसी के साथ मसला हो जाए। इन्होंने कहा आई रियली डोंट अंडरस्टैंड इट ऑल, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। यू विल हैव टू टॉक टू देम, मेरे ख्याल से आपको चाहिए कि उनके साथ बात करें। इसने कहा वेल आई एम कमिंग होम दिस वीकेंड, अच्छा मैं इस वीकेंड को घर आ रही हूँ, सो आई कैन कैच अप ऑन ऑल द डिटेल्स, तो सारे के सारे डिटेल्स का मुझे ख़बर मिल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। इन्होंने कहा वंडरफुल,
हैरान कौन, इट विल बी गुड टू सी यू, अच्छा होगा कि मैं आपको देख लूँ। वी मिस यू अलॉट, हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लिज ने कहा मी टू मॉम, मैं भी मिस करती हूँ आपको मॉम। सी यू फ्राइडे, फ्राइडे पर देखेंगे, मिलेंगे। अच्छा, vocabulary है fine words and expression in Liz and Eleanor's conversation and its introduction that have the same meaning as the following words or expression। तो ये कुछ words है, इसकी meanings ढूंढेंगे इस lesson में। तो फर्स्ट नंबर वर्ड है more than। more than का मतलब है over, feel less worried, relieved, be friends, have a good relationship, get along with, begin to know and feel comfortable with, get used to, joking, kidding, the others, तो इसका मतलब है the rest of, superior, the person you work for, boss, the kind of person, the type of person, learn what has happened recently, catch up on, feel lonely without, feel lonely without, miss। Presentation number 2, emphasizing continuing or repeated actions. Like the present perfect continuous is used to describe actions or situations that began in the past and have been continuing up to the present. The present perfect continuous, however, emphasizes the continuing or repeated nature of an action more than the present perfect does. तो present perfect tense हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इस प्रेजेंटेशन में present perfect continuous के बारे में जानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन है दिस टेंस इज यूज्ड टू शो दोज एक्शंस व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, दे मे और मे नॉट गो टू द फ्यूचर। इसका मतलब है कि ये टेंस उन एक्शंस के हवाले से बात करता है जो कि पास्ट में शुरू होते हैं, यानी शुरू हुई हो, कंटिन्यू टू द प्रेजेंट जो कि प्रेजेंट तक आते हैं, दे मे और मे नॉट गो टू द फ्यूचर, शायद ये फ्यूचर तक कंटिन्यू रहे या नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो इसका मतलब है कि एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में, यानी सुबह बारिश शुरू हुआ था। कंटिन्यू टू द प्रेजेंट तो मतलब ये है कि अभी तक बारिश हो रही है, शायद आगे बारिश हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो इस वजह से हम कहते हैं इट मे और मे नॉट गो टू द फ्यूचर। अच्छा, हर टेंस की 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैव और हैज़ प्लस बिन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल दे हैव बिन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह नेगेटिव एग्जांपल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद हैव हैज़ लगाते हैं, फिर नॉट और नॉट के बाद प्लस बिन लगाते हैं, वर्ब आईएनजी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो एग्जाम्पल इस तरह बन जाएगा शी हैज़ नॉट बिन कॉलिंग हिम सिंस यस्टरडे। इसी तरह इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हैव और हैज़ लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट बिन, वर्ब आईएनजी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन, हैव यू बिन राइटिंग दिस फॉर 3 आवर्स। ठीक है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैव और हैज़ के बाद नॉट लगाते हैं, बाकी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है हैवंट यू गोइंग टू पेशावर सिंस 8 AM। अच्छा, तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव ट्राइड टू कॉल यू मैनी टाइम्स टुडे, आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू टुडे। तो यहाँ पर ये कह रही है कि प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में जब एक्शन शुरू हुआ हो पास्ट में और अभी तक जारी हो। ठीक है, लेकिन इन्होंने फिर कहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ये ज़्यादा स्ट्रेस डालता है सेंटेंस पर एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए, सेकंड एग्जांपल है जीनो हैज़न्ट वर्कड ओवर टाइम लेटली। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप ज़्यादा स्ट्रेस देख सकते हैं। जीनो हैज़न्ट बिन वर्किंग ओवर टाइम लेटली, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, आई हैव बिन लिविंग हियर फॉर 10 years। प्रैक्टिस करेंगे। Change the emphasis in these sentences to continuing action. Bob has gotten a lot of exercise recently. तो इसको हम present perfect continuous tense में तब्दील करेंगे, Bob has been getting a lot of exercise recently. Gino and Christina have worked on their new apartment recently. Gino and Christina have been working on their new apartment recently. ये बाकी जो है आपका होमवर्क है, ये present perfect tense में है, आपने present perfect continuous tense में ये चेंज करने।
अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समटाइम्स द प्रेजेंट परफेक्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो कभी कभार प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं। When we talk about repeated action in a period of time in the past, only the present perfect shows that something happened on distinct and countable occasions. एक तो ये डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव हैड टू बिग आर्गूमेंट्स इन द लास्ट वीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में द आर्गूमेंट्स अकर्ड ऑन टू डिस्टिंक्ट ओकेजन्स इन द इंडेफिनिट पास्ट। Second example, Gino has been having problems with his boss recently. Present perfect continuous, the problems have been continuing. ठीक है। अच्छा, ये सेकंड ये कह रही है द प्रेजेंट परफेक्ट शोज एन एक्टिविटी इज कंप्लीट। तो प्रेजेंट परफेक्ट ये शो कर रहा है कि एक कंप्लीट एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। वाइल द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस शोज इट इज इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट के हवाले से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। जीनो एंड क्रिस्टीना हैव क्लीन्ड द न्यू अपार्टमेंट। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि एक्शन कंप्लीट हुआ है। दे हैव बीन क्लीनिंग द न्यू अपार्टमेंट, तो इसका मतलब है कि एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक वो अपार्टमेंट को साफ कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हमने डेफिनेशन किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इससे पहले कुछ यूनिट्स में हमने वो डिस्कस किया था, और अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से बात की, तो आप ये दोनों कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्रेजेंट परफेक्ट और द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑफ द वर्ब इन पैरेंथेसिस। समटाइम्स बोथ आर करेक्ट, समटाइम्स ओनली वंस। तो आई लॉस्ट माई वॉलेट, आई डैश इट फॉर अ वीक, I have been looking for it for a week. I dash it in every corner of the house. तो हम कह सकते हैं I have looked it in every corner of the house. Your sister dashed twice this morning. Your sister has called twice this morning. Your brother dashed all morning. Your brother has been calling all morning. He's driving me crazy. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस को। I like my boyfriend or girlfriend a lot. We dash for 6 months. We have been going out for 6 months. We dash once this week. We have gone out once this week. तो बाकी आपका होमवर्क है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 6, आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं डेफिनेशन के साथ। हम हैज़ और हैव पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद पेन लगाएंगे, वर्ब आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, हैज़ लिज बीन लिविंग इन विनफील्ड रिसेंटली? नो, शी हैजंट। वेयर हैज़ शी बीन लिविंग? इन न्यूयॉर्क विद हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी तरह आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। टॉक विद योर क्लासमेट्स एंड फाइंड पीपल हु हैव बीन डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स रिसेंटली। आस्क क्वेश्चन यूजिंग वेयर, व्हाई, व्हाट एंड हाउ लॉन्ग। देन कंटिन्यू द कन्वर्सेशन यूजिंग अदर वर्ब इन टेंसेस। एक्सरसाइज अ लॉट लेटली। तो आप इसी तरह अपने पार्टनर की इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग अ लॉट लेटली? वो कहेगा यस आई हैव। तो ये वेयर लिखा है, तो वेयर में आप क्वेश्चन करेंगे, वेयर हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग? वो कहेगा इन माई हाउस आई डू पुशअप्स। फिर वाई में आप क्वेश्चन करेंगे, वाई हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग, या वाई हैव यू बीन डूइंग पुशअप्स? तो वो कहेगा आई लाइक टू कीप इन शेप। ठीक है, तो बाकी जो है ये आप इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इंट्रोडक्शन खामखा अपने एक दोस्त के साथ करेंगे। प्रेजेंटेशन नंबर 8, टॉकिंग अबाउट सिचुएशंस एंड देयर रिजल्ट्स। सिचुएशंस के हवाले से बात करना और उनके रिजल्ट्स के हवाले से बात करना। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये हम स्टडी करेंगे। एक स्ट्रक्चर तो है, ये आप देख सकते हैं, सो प्लस सिंगल एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस दैट। इसका मतलब है कि सो के साथ जब हम सिंगल एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाते हैं उसके बाद दैट लगाते हैं, या सच और सच एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस दैट। तो ये स्ट्रक्चर्स हम कब इस्तेमाल करते हैं? दिस स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू शो पर्टिकुलर कॉज विद स्पेसिफिक रिजल्ट्स।
जब हम किसी ख़ास वजह को एक ख़ास रिज़ल्ट के साथ शो करते हैं तो हम ये दो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंप्यूटर इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट एवरीबडी वांट्स टू लर्न इट। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो हर कोई ये सीखना चाहता है। तो ये आप देख सकते हैं इज़ सो, ये यहाँ से आगे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये जो है ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, सो इम्पोर्टेंट दैट। तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये काज है कंप्यूटर इज सो इम्पोर्टेंट, तो उसका स्पेसिफिक रिजल्ट ये है एवरीबडी वांट्स टू लर्न इट, हर कोई इसी सीखना चाहता है। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर पहले एग्जांपल में मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। सेकंड, ये स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल करेंगे? इमरान खान इज़ सच अ पॉपुलर पर्सनालिटी दैट एवरीबडी वांट्स टू मीट हिम। तो ये काज है, इमरान खान इज़ सच अ पॉपुलर पर्सनालिटी दैट एवरीबडी वांट्स टू मीट हिम। एवरीबडी वांट्स टू मीट हिम, ये एक स्पेसिफिक रिजल्ट है इस काज का। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, सच अ पॉपुलर पर्सनालिटी दैट। तो यहाँ पर हमने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, टू टॉक अबाउट सिचुएशंस एंड देयर रिजल्ट्स यूज सो प्लस सिंगल एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस दैट, such a or such an plus adjective plus noun plus that. In New York City, the rents are so high that Liz can't afford to live alone. New York has such a high rents that Liz can't afford to live alone. Steve has such a small apartment that Liz has to find another place to live. अच्छा, practice करते हैं. Complete the sentence with so or such an. For items 6 to 12, give a result clause also. I was dashed. Tried that I fell asleep over my homework. तो आप कह सकते हैं I was so tired that I fell asleep over my homework. इस तरह नंबर 2 आप कर सकते हैं Kathy and Ron are such a good dancers that they usually win first prize in dance competitions. यहाँ पर उन्होंने लिखा था कि इसके लिए आप रिजल्ट खुद बनाएंगे, ये 6 से लेकर। Some English speakers talk like हम कह सकते हैं so fast that nobody understands them. ठीक है, इसी तरह the Rolls Royce is such an expensive car that everyone can't afford that. तो इसी तरह बाकी आपका होमवर्क है। अच्छे प्रेजेंटेशन में कर रहे हैं टेलिंग एंड रिएक्टिंग टू न्यूज़, यानी किसी को न्यूज़ बताना, उस पर एक रद्द अमल करना। टेलिंग न्यूज़ आप कैसे बताएंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, सैम टोल्ड मी दैट I have found 1 lakh rupees. Did you hear that, Kamran? Or have you heard that, Kamran? इसी तरह reacting to न्यूज़ पर आप रद्द अमल कैसे करेंगे? गुड न्यूज़ पर आप इसी तरह बताएंगे I am so glad to hear that, or I am glad to hear that. That's terrific, or that's wonderful. How nice. सरप्राइजिंग न्यूज़ पर आप कैसे रिएक्शन करेंगे? I don't believe it. I can't believe it. Wow. What an amazing news. You are kidding. Where did you hear that? Are you sure? I thought you are kidding. Really? I didn't know that. बैड न्यूज़ पर आप रिएक्शन कैसे करेंगे? I am sorry to hear that, or I am so sorry to hear that. That's too bad. इस तरह आप ये कह सकते हैं Did you hear that? It had another accident. आपने ये सुना है कि इट ने एक और एक्सीडेंट क्या हुआ है? Impossible. Who told you that? ये नामुमकिन है, किसने आपको बता दिया? तो इसी तरह आप न्यूज़ बयान कर सकते हैं और आप रिएक्शन कर सकते हैं न्यूज़ पर। आप इंटरेक्शन करेंगे अपने पार्टनर के साथ Did you hear that? We won't have a final exam in this course. You are kidding. Where did you hear that? A friend heard it from the teacher. I don't believe it. Not in a million years. अच्छा, इसी तरह अगर मैं बनाऊंगा इंट्रक्शन Did you hear that Kamran will buy a new car? You are kidding. Where did you hear that? A friend of him told me. I don't believe it. Not in a million years. ये एक और इंट्रोडक्शन है. Work with a partner, write a conversation in which one of you has a lot of news to tell the other. Make sure you find out several details about the news. You might want to begin the conversation with one of the following questions.
How have you been? वो कहेगा I have been okay. What have you been doing lately? I have been studying. What's new with you? Nothing special. What's the news from Peshawar? How's everyone at home? What's happening in your family or in your life? अच्छा, ये आप इंट्रोडक्शन करेंगे. Re-entry number 13. Time clauses with before, after, when, while and since. टाइम क्लासेस ये हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो बिफोर आपको पता होगा, पहले, आफ्टर बाद में, व्हेन कब, वाइल के दौरान, सिंस से. वर्क विद अ पार्टनर. टॉक ओवर पॉसिबल वेज टू कंप्लीट द सेंटेंस. राइट द बेस्ट सेंटेंस यू थिंक of on a piece of paper. Compare your sentence with those of other students in your class. For example, Liz started looking for a job when she realized that she was bored with her old one. Liz began to think about changing jobs while she worked a lot in the same company. ठीक है. और हम इसी तरह कर सकते हैं while she was working for a long time in the same company. She talked with her parents and friends before she left the job. यानी जॉब को लीव करने से पहले उन्होंने पेरेंट्स से बात की थी और फ्रेंड से. When Worldwide Airlines called to offer her a job, she suddenly applied for that. She called her friends in New York after she reached न्यूयॉर्क सिटी. तो इसी तरह आप ये री-एंट्री कर सकते हैं. अच्छा, ये प्रेजेंटेशन है. नेक्स्ट, talking about the duration of situations. To talk about the duration of situations, use clauses with until. When the main clause uses the future, the until clause uses the present tense or can. अच्छा, तो until के हवाले से definition ज़रा देखते हैं. until प्लस अ क्लास. तो until के बाद जब हम क्लास लगाते हैं, definition होता है this word until is used with a clause. ये until word जो है ये हम क्लास के साथ इस्तेमाल करते हैं to show the duration of an action. जब हम किसी एक्शन की ड्यूरेशन के हवाले से बात करते हैं तो examples, I will upload videos until I upload all this series. अच्छा, मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और मैं वीडियोस अपलोड करूँगा जब तक कि ये सीरीज़ ख़त्म नहीं हो जाता. तो ये until जो है ये मेरे एक्शन के ड्यूरेशन के हवाले से बात कर रहा है कि मेरा जो एक्शन है वो कब तक जारी रहेगा. I will teach IELTS until I send 500 students abroad. तो until ये कह रहा है कि मैं कब तक IELTS पढ़ाऊँगा जब तक कि मैं 500 स्टूडेंट्स बाहर नहीं भेजता. Liz will live with Sue until she can find an apartment. ये मेन क्लास है और ये रिजल्ट क्लास है, until क्लास. Bob won't be able to drive alone until he passes the road test. When the main clause uses the past, the until clause uses the past. इन बोथ क्लासेस में आप past इस्तेमाल करेंगे अगर एक क्लास में past tense इस्तेमाल हुआ हो तो. Liz looked for a job until she found what she wanted. Liz didn't leave the telephone company until she had the job with Worldwide Airlines. प्रैक्टिस करेंगे. Nobody can be happy until he or she likes until he or she learns to like himself or herself. Our trip was perfect until I lost my wallet. We won't have peace in the world until we learn to accept the fact that people are different. ठीक है, तो बाकी आपका होमवर्क. लिसनिंग को हम स्किप करते हैं. ये रीडिंग है. बिफोर यू रीड, डू यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? व्हाट्स योर पोजीशन इन द फैमिली? सो आई एम द यंगेस्ट वन. आई हैव ब्रदर्स. या. आर यू द ओल्डेस्ट? द यंगेस्ट. आई एम द यंगेस्ट. इन द मिडल. हाउ डू यू फील अबाउट योर पोजीशन? या, आई फील वेरी कंफर्टेबल about my position because I am the youngest, so I don't have to do anything because my like my elder brothers, they work and they do the things which are necessary for our basic living. How do children sometimes feel when a brother or sister gets more attention than they do? Yeah, exactly. For example, when you have siblings and your parents give them more attention than you, so obviously you will feel possessive, jealous, etc. If you have any brothers and sisters, do you have a lot in common with them
Do you agree or disagree with them on most issues? Yeah, so as you know that like when you have brothers or sisters, so you will have the same opinions, the same like structure of your face, and like you will have the same thoughts. So on most of the issues you will agree. Sometimes yeah, you will disagree with your brothers or sisters, but most and commonly you will agree with them. First reading. Read these questions before you read Jennifer Harrison essay. Look up for answers as you read. What's Jennifer position in her family? तो ये questions, ये इनके answers आपको मिल जाएंगे अगली यूनिट की स्टार्ट में. रीडिंग जो है ये आपका होमवर्क है. अच्छा, राइटिंग में कह रही है राइटिंग नंबर 16 में talk with 1 or 2 classmates about relationships you have with friends or family members. What make relationships good or bad? आपने relationship के हवाले से अपने दोस्त के साथ बात करना है. Write a short essay of 3 or 4 paragraphs to answer one of these questions. Follow the general model below. आपने essay लिखना है 4 paragraphs का और आपने ये questions उनमें include करने हैं. अच्छा, इनमें से एक question आपने लेना है. Question number 1. Describe a good relationship you have with another person. Why is it good? Give examples of what you do for each other. Number 2. Describe a problem relationship you have with another person. Why isn't the relationship in good condition now? What could you or the other person do to make it better? अच्छा, तो पैराग्राफ यानी ऐसे आप कैसे लिखेंगे? आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बॉडी पैराग्राफ और आखिर में कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे? मेंशन योर टॉपिक, द पर्सन एंड द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप. ट्राई टू इंक्लूड समथिंग टू गेट द रीडर इंटरेस्टेड इन रीडिंग मोर. आपने ऐसा कुछ लिखना है कि जो रीड कर रहा है आपके ऐसे को कि वो इंटरेस्ट ले. बॉडी पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है? डिस्कस व्हाई द रिलेशनशिप इज गुड और बैड, गिव डिटेल्स. कंक्लूजन में आपने लिखना है मेक अ फाइनल कमेंट ऑन द रिलेशनशिप. यू माइट समराइज व्हाट यू हैव सेड और टॉक अबाउट द फ्यूचर of the relationship. Share your ideas about the good and bad relationships with your classmates. What makes good relationships? What causes problems in relationships? अच्छा, तो writing आपका homework. Final activity में work with a classmate and make a list of famous people it would be fun to interview. Put the list on the board. Work with a partner and plan a short interview of one of the people. Use the suggested language in your interview. Don't mention the name of the famous person. Can your classmates guess who it is? The suggested language. Thank you for giving me the interview. What have you been doing since since 2018? Oh really? How have you been working lately, and what are your plans for the future? I can't afford living alone until I find a job. So like that you can continue your इंटरव्यू. तो इसके साथ यूनिट नंबर 8 का इख्तिताम होता है. इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे यूनिट नंबर 9 में.